Hello, my dear students. Welcome back to the e-learning classes of Vardhaman. I hope all of you are safe at home. Today, in this class, we will study our second chapter, subject and predicate. Subject and predicate के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Subject और predicate होता क्या है? ये एक sentence का, एक line का, एक दो भाग होते हैं. Every sentence has two part. हर एक जो line होती है, उसके दो भाग होते हैं. One is subject, one is predicate. In through the sentence example we will study like Ram is going to market. Ram is going to market. Here the sentence has two part. One part subject, the another part which is a predicate. Subject कौन सा होता है? Which part in which about we speak something, जिसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं, that is subject. जिसके बारे में बात हुई, और the person who does the action or we speak about, that is subject. Here the work is going on, but who is the worker, who is doing the action? Ram. Means market कौन जा रहा है, जाने का काम हो रहा है, लेकिन market, who is going to market? Ram is going to market. Here we are talking about Ram. Ram is the person who does the action, so it is Ram is subject. Ram क्या हो जाएगा यहाँ पर? Subject. दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का मतलब इन हिंदी मीनिंग उद्देश्य और विधेय. अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो गई, वो है प्रेडिकेट. तो यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम. राम के बारे में क्या बात हो रही है? इज गोइंग टू मार्केट. सो द रिमेन पार्ट वूल विल बी प्रेडिकेट. इट इज अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हुई, दैट इज प्रेडिकेट. सो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट वांट टू लर्न द Book's language, you may write the another language. The person who does the action or we speak about, that is subject. In the sentence we speak about, that is subject, or a person who does the action, that is known as subject. Means जो काम को करता है और जिसके बारे में बात हुई वो जो है subject कहलाता है. What is said about the subject? Are you getting me? What is said about the subject is called predicate. You may repeat. What is said about the subject is called predicate. Means subject के बारे में हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि is going to market. This part will be predicate. Okay. Here please note, some of the students in the previous class also, they suppose that helping verb will also include a subject. No any helping verb will include it in helping verbs. You know, is, are, am, was, were, which I wrote in the top of the board in the previous class, you know, while I was explaining the sentence topic. Clear? तो जो भी helping verbs होती है, is, are, am, was, were वगैरह, वो किसी भी subject के साथ में नहीं आएगी. ध्यान रखना, sentence का मतलब, sentence के अंदर subject का meaning क्या हो गया? हम जिसके बारे में बात करते हैं या जो काम को करता है. Here examples also given in the book. You may see fruits and vegetables makes us strong. Fruits and vegetables make us strong. तो यहाँ I write here. It will be easy for you. Fruits and vegetables make us strong. Make us strong, are healthier to eat. Okay, here we are talking about fruits and vegetables. यहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा, यहाँ कौन सा व्यक्ति है जो काम कर रहा है? Who is working? No. Here we are talking about something. यहाँ हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और किसके बारे में बात कर रहे हैं? Fruits and vegetable. यहाँ इनके बारे में बात हो रही है. तो this is subject and the remain part, that is known as predicate, which I underline. Make us strong. This will be predicate and this is subject. Clear? One more time. अच्छा, आपको करना क्या है? You have to write the define of subject and predicate also. Okay. With the example you have to write in the, while you are writing the define of subject, you have to write a sentence and explain and show that subject is there. And while writing the define of the predicate, you have to write the define of the predicate and show in the example also that predicate must be underlined, or while writing subject you show or underline the subject part. Clear? उनकी डिफाइन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, और उसको एग्जाम्पल में शो भी करना है. क्लियर? नाउ लेट्स सी, because this is a very short chapter, now we will see
some examples given in the exercise 1. Okay, example number 1, what you have to find out, you have to write, circle the subject and underline the predicate in the following sentences. Here, exercise number 1, please see, circle the subject and underline the predicate. Underline the predicate. What you have to do, subject or predicate को find out करना. This is your question today. Clear? So number 1, the train was late by 2 hours. The train was late by 2 hours. Okay, here what is subject and what is predicate find out करो. तो यहाँ बात हो रही है ट्रेन की, द ट्रेन. ट्रेन के बारे में क्या बात हो रही है कि दैट वाज लेट बाय 2 आवर्स, 2 घंटे वो लेट थी. तो यहाँ क्या करना है, सर्कल द सब्जेक्ट, सर्कल करना है आपको सब्जेक्ट को. और यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन. काम कौन कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ ट्रेन के बारे में बात हो रही है. सो वी विल सर्कल द ट्रेन, द रिमेन पार्ट विल बी अंडरलाइन बिकॉज इट इज predicate. It is predicate. See, next example, we should not eat junk food. We should not eat junk food. See, listen to me carefully. अभी आप ये कह सकते हो कि सर आपने क्या कहा था कि किसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ जंक फूड के बारे में बात नहीं हो रही है. यहाँ काम किसे नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट, हमें. सो वी विल बी सब्जेक्ट एंड द रिमेन पार्ट विल बी प्रेडिकेट. शुड बी जो है इसके साथ नहीं आएगा, शुड बी अलग से रहेगा. वी इज सब्जेक्ट ओनली, द रिमेन पार्ट इज अ प्रेडिकेट. नंबर 3, प्लीज सी ऑन द बोर्ड. वन मोर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग. I like your handwriting. I like your handwriting. That is your 13th example. Okay. I like your handwriting. Okay. यहाँ बात हो रही है हैंडराइटिंग की. स्पेशली मुझे हैंडराइटिंग पसंद है, बट वो आई लाइक, यहाँ काम को कौन कर रहा है, पसंद कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं. तो यहाँ सब्जेक्ट आई होगा, द रिमेन पार्ट विल बी प्रेडिकेट एंड हियर यू विल अंडरलाइन. क्लियर? द फर्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन द बुक. व्हाट इज द रिटन वर्क टुडे? यू हैव टू राइट बोथ द डिफाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक्सरसाइज नंबर 1, 2 and 3 you have to fill up in the book, but write only exercise number 3. Write only exercise number 3 in your notebook. So today's work, what is work? Define. I am writing here so that it will be easy for you. I hope exercise number 1 you have learned and you understand very well. Define subject and predicate. Define subject and predicate plus exercise number 3. That is your written work today. You have to write, define of subject and predicate and exercise number 3. This is your written work. Fill up, you have to do all the 3 exercises. Clear? Now exercise number 2, which is given in the book. See how to do. Number 2. Complete the sentence by adding appropriate predicate, and in the 3rd, complete the sentence by suitable subject. Clear? Complete the sentences. Complete the sentence by suitable subject.
not a subject. Subject in the third exercise. Here you have to write predicate. Clear? So question number 2, subject आपको फिलअप करना है और predicate आपको फिलअप करना है. The tree. Number 1, it will increase your creativity. How to write something about, किसी के बारे में आपको कैसे लिखना है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे if you will write those examples in your language. The questions and answers which I had explained, but I hope you will write all the answers in your language. जो explain मैंने यहाँ पर कर दी है आपको, but इसमें भी आप try करो कि आप खुद का आंसर लिखो, आपकी अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, you write please that answer. Okay? तो यहाँ आपको सेंटेंस को फिलअप करना है. The tree. सुटेबल जो अभी प्रेडिकेट है इससे आपको फिलअप करना है. द डॉग्स. द डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल्स. डॉग्स जो है बहुत फेथफुल एनिमल होते हैं, कुत्ते जो बहुत ही वफादार होते हैं. अगर डॉग इज ओनली डॉग होता तो मैं द डॉग इज फेथफुल एनिमल, लेकिन यहाँ डॉग्स है, कुत्ते होते हैं, तो यहाँ मैं हेल्पिंग वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा. The dogs are very faithful. Dogs are very faithful. Okay? और अब आपको faithful वगैरह it will be hard for you. You may, I think you are not able to write such types of sentence like faithful वगैरह आपको नहीं आएंगे, तो आप easy लिखो the dogs guard our home. Dogs जो है हमारे घर की रखवाली करते हैं. The dogs are good friends of human beings. ओके कुत्ते जो होते हैं हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, बिकॉज दे टेक केयर ऑफ अस, दे नेवर फॉरगेट एनी ऑफ, कोई भी एहसान जो है हमारा नहीं भूलते हैं, दे ऑलवेज गिव इन रिटर्न. तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए द डॉग्स आर वेरी फेथफुल टू अस, द डॉग्स आर वेरी फेथफुल टू ह्यूमन बीइंग्स. ओके द डॉग्स गार्ड्स आवर होम इन द नाइट और फुल डे, दे गार्ड्स करते हैं ना. ओके तो इन योर लैंग्वेज the tree give us many useful things like wood, fruits, vegetables, like you have to complete your sentence. तो सब्जेक्ट हमें दिया गया है, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखना है, बट दैट मस्ट बी सुटेबल. सुटेबल का मीनिंग हो गया, समझते हो आप? अगर सपोज आई एम राइटिंग हियर वी कैन और वी कैन नॉट, वी कैन हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते. तो यहाँ कुछ ऐसी एबिलिटी या कोई ऐसा काम जो हम कर सकते हैं, हमें उसको तरीके से यहाँ अप्लाई करना है. वी कैन नॉट तो जो काम हम नहीं कर सकते. क्लियर? वी कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स, हम उड़ नहीं सकते. ओके या अगर यहाँ आई कैन नॉट होता तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं. सपोज आई कैन नॉट जंप, आई कैन नॉट डांस. तो जो डिसेबिलिटी है वो आप नहीं कर सकते, दैट ओनली अप्लाई. मींस डांस यू कैन डू, सो यू हैव टू नॉट टू राइट हियर. जो चीजें आपको यहाँ नहीं लिखनी है, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके अलावा उसके तरीकों को देख के आपको जो है प्रेडिकेट को अप्लाई करना है. ओके नाउ आई विल एक्सप्लेन द टीचर, द साइकिल हियर गिवन दैट आर वेरी इजी. मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, मिसेस एंड मिसेस शर्मा. ओके इसके बारे में आप कुछ भी लिखो. आर टीचर, ओके आर गोइंग टू जोधपुर, आर वॉकिंग इन द गार्डन, ओके आर प्लेइंग बैडमिंटन. द मिस्टर एंड मिसेस शर्मा प्लेज बैडमिंटन इन द इवनिंग, ओके गोज फॉर वॉक एवरी डे. ये जो उनके बारे में आपको सुटेबल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेडिकेट लिखना है. पिंक, इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. हरी, अब हरी के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, that must be correct and all the things and all the words must be arranged. क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, सारे वर्ड्स को आपको अरेंज करना है. Here the books, the animals give us many things like wool, meat. हमें बहुत सारी मिलती है चीजें, उनसे हम लोग बहुत सारी प्राप्त करते हैं. The books gives us knowledge. बुकें हमें जो क्या देती है, गिव अस लॉट ऑफ नॉलेज. हमें बहुत सारा नॉलेज जो है बुक से ही मिलता है. इवन आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग थ्रू द बुक. क्लियर? एक्सरसाइज नंबर 2 यू कैन डू. उसमें आपको सब्जेक्ट दिया गया है और आपको प्रेडिकेट लिखना है. डोंट फियर अबाउट इट. अगर कुछ समझ में नहीं आता है, यू हैव टू
राइट इन योर लैंग्वेज एंड सेंड मी द पिक, आई विल करेक्ट यू। जहां जहां आपने मिस्टेक की है मैं आपको सही करूंगा, और आपने जो जो रॉन्ग किया है उसका सही आंसर भी बताऊंगा। you have to not, you will not be punished, so don't fear about it, only write. Number third exercise now we will read. A very less difference in it, suitable predicate. Suitable sorry, here is subject, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है, ये वाला जो पार्ट है जिसके बारे में बात हो रही है या काम करने वाला व्यक्ति जो है वो मिसिंग होगा यहाँ पर। हियर वी विल राइट अबाउट सब्जेक्ट। तो नंबर 1, फॉट ब्रेवली, फॉट ब्रेवली, ब्रेवली बहादुरी से, फाइट की फॉर्म में फाइट, फॉट, फॉट लड़ाई की, किसने लड़ाई की, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यू मे राइट द सोल्जर, सोल्जर्स मीन्स सैनिक, जो आर्मी में हमारे होते हैं, फौजी जो होते हैं, तो यू मे राइट हियर द सोल्जर, the soldiers. I think this sentence, the same sentence is written behind the chapter. If you will turn one page back, okay. Number are healthy to eat, are प्रेडिकेट दिया गया है, ये पार्ट प्रेडिकेट है और हमें जो है सब्जेक्ट फिलअप करना है। आर हेल्दी टू ईट, योर आंसर्स मे बी डिफरेंट, आप सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। हेल्दी मतलब अच्छे, स्वास्थ्य के लिए, दैट आर गुड, टू ईट, तो अब यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो सकता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो सकता है, एंड ड्राई फ्रूट्स आर हेल्दी टू ईट। जो जो चीजें हमारे लिए हेल्दियर है, आपको लाइन को पढ़ना है पहले एंड देन आफ्टर आंसर लिखना है। आर हेल्दी मतलब आपको दो चीजें लिखनी है, आर मीन्स है, लेकिन अगर यहाँ इज होता तो अपन एक चीज लिखते, फ्रूट्स, फ्रूट इज गुड, या मैंगो इज वेरी गुड फॉर अस, एप्पल इज हेल्दी टू ईट, तो एक ही चीज के बारे में लिखते हैं। लेकिन यहाँ आर है तो हमें दो चीजों के बारे में लिखना है, या प्लूरल फॉर्म में लिखना है, फ्रूट नहीं लिखना, फ्रूट्स लिखना है। क्या लिखना है? फ्रूट्स, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, fruits and vegetables. Clear? You may write, you know, I think spelling of vegetable. Clear? One more, is a beautiful city, is a beautiful city. Yes, your India is very beautiful, but don't write India. India is a country. यहाँ आपको क्या लिखना है? City. क्या लिखना है? City means इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज है, मुंबई है, कोलकाता है, वॉट एवर यू लाइक, तो आपको किसी एक शहर का नाम लिखना है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, वो आपको लिखना है। क्लियर? तो यहाँ सिटी के अंदर सिटी का नाम लिखना है, और बिग का किसी जगह का पूछिए कि बिगेस्ट कंट्री लिखना है, स्मॉलेस्ट कंट्री लिखना है, कोई कंटिनेंट का नाम लिखना है, इट इज द कंटिनेंट, तो यहाँ किसी कंटिनेंट का लिखो, स्टेट का पूछा है तो स्टेट का नेम लिखो। अब आपको स्टेट की जगह कंट्री नहीं लिखना है और कंट्री की जगह कोई भी सिटी नहीं लिखना है। क्लियर? So I hope you understand very well today's task. Again I am telling, subject and predicate की define आपको लिखनी है, यही एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है, रिमेन सारा वर्क जो है आपको बुक में ही करना है। ओके, थैंक्स।